Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Hari Bol Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Gaur Hari Bol श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजिकाचार्यष्टो तत्सत शिष्य मधवै चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन पीवीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त विंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की चंद्रभागा मैया की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की
श्री राधा कुंज बिहारी गौरनिताय चंद्र भगवान की, शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, शील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, गौरनिताय चंद्र भगवान की, भक्ति प्रधानी विंध्य देवी तुलसी महारानी की, भगवद गीता भागवत महापुराण की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की, हिताय गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Srila Prabhupada ki. Translation: the lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I vow to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of the material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. He opens my darkness eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic prema emanates. By him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord and the master of the devotee. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of our lotus feet. Our fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most fallen. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Sri Gurudev. Srila Prabhupada ki. जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी
गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रजन रंजन दानंदन ब्रजन रंजन यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रजन रंजन यशोदानंदन ब्रजन रंजन यशोदानंदन ब्रजन रंजन तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai. Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bola Hari Bol, Nitai. Jayo Vishwapat Paramahansa Vichara Stodha Dvangis A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Nitilila Pravisha Vishwapat Paramahansa Vichara Stodha Dvangis Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तविंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की प्रज्वल वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम के जगन्नाथपुरी धाम की गंगमयी जमुनमयी की तुलसी देवी भक्ति देवी की हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्तविंद की हरे कृष्ण महामंत्र की देवर मोस्ट ब्यूटीफुल लॉर्ड श्री श्री राधा कुंज बिहारी की श्री श्री गौर निताई की श्री श्री राम नवमी महोत्सव की श्री राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की जय निताई गौर प्रेमानंद. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all Sri Guru and Sri Gauranga. Very well. Backrest. हाँ ठीक. ऊपर करो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश
श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं जयतां सुरतो पंगुं मुमुन्दुमुते गति मत्सर्वदाम्बुजो राधामदन मोहन। तो सभी भक्तों के आशीर्वाद से राम कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अब रामनवमी का महोत्सव कल बड़े धूमधाम से मनाया गया। कि भक्तों का आशीर्वाद अवश्य है, क्योंकि कहते हैं कि राम से अधिक राम कर दासा। भगवान राम से बढ़कर भगवान राम के दास हैं। मोरे मन प्रभु असु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। जगजननी सीता जी को भी प्रणाम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल नवावो जास कृपा निर्मल मति पाऊं। बिना सीता जगत जननी जानकी के आशीर्वाद के भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सीता जी की कृपा से ही निर्मल बुद्धि मिलती है, जिसे हम राम कथा कह सकते हैं। और सभी भक्तों को सिया राम में जान करके उनको प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जुग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम जी जो है सभी जीवात्माओं में परमात्मा के रूप से निवास कर रहे हैं। इसलिए सभी को दोनों हाथ से जोड़कर प्रणाम करते हैं, फिर राम कथा का प्रारंभ करते हैं। राम रावण युद्ध चल रहा है और मेघनाथ का युद्ध चल रहा है लक्ष्मण जी से। तो मेघनाथ ने एक बाण चलाया जिससे कि नाग के पांच निकले और राम और लक्ष्मण दोनों ही नाग फांस से बंध गए और वो मूर्छित हो गए। माया रूपी नाग आए और आकर के भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों को बांध लिए नागपाश में। और नारद जी ने फिर गरुड़ जी को भेजा और गरुड़ जी ने क्योंकि गरुड़ का आहार क्या है? सर्प है। तो माया रूपी नाग को वो खा लिए और भगवान बंधन मुक्त हो गए। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे ही गरुड़ जी वहां से चले, उन मन में बहुत बड़ा विषाद और मोह आ गया। सोचने लगे कि जिनका नाम श्रवण करने से एक बार भी जो है जीवात्माएं भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिसका नाम श्रवण करने से, जिसका नाम एक बार स्मरण करने से, कीर्तन करने से जीवात्माएं भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वही एक छोटा सा क्षुद्र निशाचर मेघनाद
कैसे भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया। ते भव बंधन ते छूटहि नर जपि जा कर नाम। भव बंधन ते छूटहि नर जपि जा कर नाम। खर्व निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। सोचने लगे कि जासु नाम सुमिरत एक बारा नर उतरहि बहु सिंधु अपारा। ये भी सोचने लगे इसका कि नाम स्मरण करने से लोग अनायासी भवसागर से पार हो जाते हैं। ते पाप ही जा पापी हो जा कर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि भगवान राम का नाम स्मरण करता है, भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करता है, तो बिना परिश्रम के भवसागर से तर जाता है। और सादर सुमिरन जे नर करहि ते गोपन इव भव निधि तरहि। और जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सादर सुमिरन जे नर करहि ते गोपद इव भव निधि तरहि। गोपद का मतलब जानते हैं आप, जिस प्रकार गांव में आप जाएंगे गाय का चिन्ह हो जाता है, उस गो चिन्ह को एक बच्चा भी पार कर सकता है। तो पूरा भवसागर जो है गोकुर के समान होकर के जीव पार करते हैं यदि भगवान का नाम प्रेम से स्मरण करते हैं। तो गरुण जी समझा रहे थे अपने आप को, नाना भांति मन ही समझावा। बहुत समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान असहाय पड़े हुए युद्ध भूमि पड़े हुए थे और नाग जो है उनको काटे जा रहे थे, सर्प लोग, खून बह रहा था और भगवान कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहे व्यापक ब्रह्म विरज वागीशा माया मोह पार परमीशा। भगवान जो है व्यापक है, ब्रह्म है, वागीश है, माया मोह से परे है। और ये ऐसा कैसा हुआ शुद्ध निशार के द्वारा वो बंध गए। तो समझाते समझाते नहीं समझ में आया तो गए देवर्षि नारद के पास गए, बोले मुझे ऐसा क्या हो गया है कि भगवान राम को इस क्षुद्र राक्षस ने क्यों नाकवा से बांध लिया और भगवान राम नहीं कुछ कर पाए। मैंने सुना है कि भगवान ने अवतार लिया है लेकिन देखो कुछ प्रभाव हो कुछ नहीं, और कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है भगवान राम का कि भगवान राम असहाय पड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि महामोह व्यापक उर्तोरे, तुम्हारे हृदय में बहुत महामोह हो गया है और शीघ्र ही तुम ब्रह्मा के पास जाओ, चतुरानन पही जाओ खगेशा, और वहां जाकर उसका निदान होगा। और नारद जी मन में सोच रहे हैं कि भगवान की माया ने मुझे भी कई बार नचाया है लेकिन इसको तो महामोह ने घेर लिया है, क्या होगा। देखिए गरुण जी जो है, गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण जी महाज्ञानी हैं, गुण के राशि हैं और जब जब भगवान ध्यान करते हैं उनके वाहन के रूप में आते हैं और सब कार्य करते हैं। कि हरि के सेवक हैं, उसके अति निकट हैं, उनको भी मोह हो गया। जब गरुण जी चलते हैं तो क्या होता है, सामवेद के मंत्र उच्चरित होते हैं कि नारायणायम तुभ्यम नमामि, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यम नमामि। सामवेद के जो मंत्र है वो गरुण जी का जो पंख फैला के उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि उच्चरित होती है। ऐसे महाज्ञानी, माने उनको पूरा सामवेद का पूरा कंठस्थ है और
यहाँ तक कि उनके पंखों से, उनके विंग से जो है सामवेद की ध्वनि उच्चरित होती। तो गरुड़ महाज्ञानी, ऐसे ज्ञानी और गुण के राशि हैं, और फिर भी हरि के सेवक हैं, उनके अति निकट हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी को यही कहा कि ऐसा क्या हुआ। तो मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। जेहि बहुबार न चावा मोही। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा भगवान की माया ने कितनी बार मुझे नचाया है वो तो मैं ही जानता हूं, कि माया के बस में कवि कोविद और ज्ञानी सभी है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने याद किया कि ब्रह्मी मोहन लीला में, कृष्णावतार में मैं ही मोहित हो गया था, भगवान के ग्वाल बालों बछड़ों को ले गया था, वापस आके देखा तो फिर वही से ही वहां पर है। आने में 1 वर्ष लग गया। ब्रह्मा का एक क्षण यहाँ 1 वर्ष में जैसे ही चल रहा था तो ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं। कहा कि मुझसे तो नहीं होगा करुण, तुम जाओ शिव जी के पास जाओ, तुम्हारे मोह का वही निवारण करेंगे। तो वहां शिव जी जा रहे थे कुबेर के यहाँ, और उमा जी कैलाश में थी, और रास्ते में मिले वहां। तो गरुड़ ने यही सवाल किया कि ऐसा कैसे हुआ। तो शिव जी कहते हैं, मिले हो गरुड़ मार्ग मोहि मोही, कवन भांति समझावं तोही। गरुड़ तुम मेरे रास्ते में मिले हो, मैं जा रहा हूं कुबेर के यहाँ, और ये बहुत गूढ़ विषय है। वास्तव में देखिए, राम कथा देखने में बहुत सरल लगती है, लेकिन है बहुत ही गूढ़। इसको तुलसीदास जी इतने ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने पूरे कविता में रामायण को बद्ध किया, और वो भी कह रहे हैं कि मैं निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, समुझी में नहीं 10 बालपना तब मैं रहूं अचेत। वाराह क्षेत्र में गुरु से कथा सुनी थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था कि श्रोता भगता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। तो राम की कथा गूढ़ है, उसमें श्रोता भक्ता दोनों ही बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से सुनना चाहिए। श्रोता और भक्ता अगर दोनों श्रद्धा से नहीं बोलेंगे और सुनेंगे तो राम कथा समझ में नहीं आएगी। मैं समझो कि मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं समझूं कि मैं जीव जड़ हूं, और कैसे समझूंगा कोई कथा राम की गूढ़ है। कलिमल ग्रसित विमूढ़, ये तो कली का मल है, मेरी बुद्धि को ग्रसित किया हुआ है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शिव जी ने कहा कि तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तुम्हारा संशय जो है तभी दूर होगा जब तुम बहुत काल तक जो है सत्संग करोगे, माने बहुत काल तक जो है राम की कथा सुनोगे तो तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। कहा कि सुमेर पर्वत के ऊपर एक नील गिरी है, वहां काकभूषुंडी है, वो वहां कथा कहते हैं राम तुम वहां जाओ और तुम्हारा मोह वहां जाके दूर होगा। क्योंकि सूजी सोच रहे थे कि ज्ञानी भगति शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर भावर करहि गुमान। कि गरुण जी हैं भक्त के शिरोमण हैं। गरुण को भक्त शिरोमणि कहा गया है क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, और त्रिभुवन निकट के वाहन हैं, भगवान के वाहन हैं।
और उनको भी जो है माया और मोह हो गया, तो हम जैसे मनुष्य की क्या विसात है। हम लोग गर्व कर रहे हैं तो ये तो मिथ्या है। शिव विरंच मोहि को है बपुरा आन। ब्रह्मा और शिव भी जो है माया से मोहित हो जाते हैं। तो गरुण जी वहां गए जहां काकभुचुंडी जी कथा कर रहे थे। काकभुचुंडी जी कथा भी बहुत लंबी है, कैसे उनको काक का जन्म मिला। वो ब्राह्मण थे और पहले हरि मंदिर भगवान शिव के मंदिर में वो शूद्र का जन्म था उनका, और शिव का मंत्र जप रहे थे। उनके गुरु आए, अभिमान से उठ के खड़े नहीं हुए। तो गुरु ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन शिव जी बहुत ही क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया कि तुम्हारे 1000 जन्म होंगे। फिर लोमश मुनि के पास जब ब्राह्मण का रूप आया तो लोमश मुनि के पास गए, मुझे राम मंत्र देना। तो कहा मैं राम मंत्र नहीं दूंगा। तो तर्क वितर्क हो रहा था, तो कहा कि जाओ तुम जाके काग बन जाओ। तो वो कौवा बन गए। तब लोमश मुनि को दया आ गई, उन्होंने हर्षित राम मंत्र मोहिदीना राम मंत्र दिया और उनसे भगवान का दर्शन हुआ। तो गरुण जी जब वहां जाते हैं तो भगवान की कथा आरंभ करने जा रहे थे काकभुचुंडी जी। काकभुचुंडी जो है उनका ना कल्पांत तासु नाश कल्पांत न हुई। महाप्रलय के बाद भी उनका नाश नहीं होता है। ऐसे हैं काकभुचुंडी जी। तो कहते हैं नाथ कृतारथ भय हूं मैं तब दर्शन खगराज। हे खगराज, गरुण जी आप यहाँ आए हैं, मैं कृतार्थ हो गया हूं। तो उनका हृदय पादे वंदन किया, उनको आसन दिया और फिर राम की कथा उन्होंने आरंभ की। तो ये पूरी जो राम कथा है 10 मिनट में पूरी समाप्त हो जाती है, लेकिन उसमें सारे प्रसंग सब हैं उसमें 10-15 मिनट में। कुछ श्लोकों में 4 दोहों में वो मैं थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा, बहुत सुंदर है। और उसमें जो कुछ कुछ अच्छे प्रसंग हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर के शिव कहानी। भगवान राम का चरित्र एक सर के समान है, माने एक सरोवर के समान है। उसमें खाली आप स्नान करेंगे तो लाभ नहीं होगा, उसमें आपको डुबकी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डुबकी लगाना पड़ेगा। भगवान राम का जो चरित्र है उसका एक सरोवर के समान है। उसमें खाली मज्जन करने से लाभ नहीं है, उसमें पूरा डुबकी लगाना पड़ता है। तो प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे शिव कहानी। पुनि नारद कर मोह अपारा कहे से बहुरी रावण अवतारा। नारद जी को मोह हो गया था, उनको विवाह करना था। उसकी एक लंबी कहानी है, वो बाद में कहूंगा। उस नारद का मोह, उन्होंने कहा भगवान ने विवाह नहीं करने दिया, उनको बंदर का रूप दे दिया था। तो जो राजकुमारी थी वो स्वयं लक्ष्मी जी थी, और वो वहां स्वयंवर में गए तो वो लक्ष्मी जी ने कभी देखा ही नहीं भूल करके। तो नारद जी ने श्राप दिया कि तुमने मुझे बंदर का रूप दिया, तो तुम्हारा अवतार होगा तो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो पुनि नारद कर मोह अपारा कहीं से बहुरी रावण अवतारा। रावण किस प्रकार प्रकट हुआ उसकी कहानी कहा। तो प्रभु अवतार कथा ही गाई। भगवान का अवतार किस कारण से हुआ उसका उसने गीत किया।
और तब शिशु चरित कहे सिमन लाई, भगवान का बाल चरित्र कहा। बाल चरित कही बहु विधि, बहुत प्रकार से बाल का चरित्र उन्होंने कहा। मन मह परम उछा, मन में बहुत आनंद था। ऋषि आगमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। किस बार विश्वामित्र जी आए महाराज दशरथ के पास, उनको राम लक्ष्मण को मांगने के लिए कि ताड़का स्वभाव हुआ महर्ष जो है कष्ट दे रहे हैं, तो वो उनको ले गए और इस प्रकार जनकसुता से विवाह हुआ। स्वयंवर, जनक स्वयंवर में गए, वो सब उन्हें कहा। तो ऋषि आगमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि में बचन राज रस भंगा। तो राम का राजाभिषेक जो तैयारी हुई थी वो सब कहा। और किस प्रकार कैकेयी ने दो वर मांगा, भरत को युवराज और राम का 14 वर्ष के लिए वनवास, उसे राज रस भंगा। तो पूर्वासिन कर विरह शादा, और जयवासी बहुत ही विराकुल हो गए। और लक्ष्मण जी भी जाना चाहते थे, तो भगवान ने उनको उपदेश किया। पूर्वासिन कर विरह विषादा, कैसी राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, और सुरसर उतरी निवास प्रयागा। तो 2 मिनट के लिए केवट का प्रसंग वर्णन करेंगे कि लिखा है विपिन गवन केवट अनुरागा। भगवान जाते हैं वन में और गंगा नदी के किनारे आते हैं और उनको पार करना है गंगा नदी। केवट वहां नाव लेके आता है। तुम्हारी नावन केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। भगवान राम ने नाव मांगा कि केवट गंगा पार उतारो। केवट कहता है मैं पार नहीं उतारूंगा। क्यों नहीं उतारोगे? चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। कहा कि आपके चरण कमल में जो धूल है उसमें एक ऐसी विद्या है जिससे कि लोग जो है मनुष्य हो जाते हैं। जहां भी स्पर्श करोगे वो मनुष्य हो जाएंगे। और मेरी नाव है, वो अगर आप स्पर्श करेंगे तो वो मुनि की पत्नी बन जाएगी। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पद्म पकार न कहू। आप अगर पार जाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पार उतारूंगा, लेकिन आपके पैरों की धूल है वो मुझे साफ करना है। धूल से स्पर्श हुआ आपके चरण कमल की रज अगर मेरे नाव को स्पर्श करी तो ऋषि पत्नी बन जाएगी। और मैं इसी नाव से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, और मेरी नाव चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चौ। क्या मुझे कोई उतराई मत देना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए उतराई के, कि हम दोनों एक ही जात के हैं। उसने बोला आप गंगा जो है, मैं गंगा से पार उतारता हूं, आप सबको भवसागर से पार उतारते हो, तो दोनों की जात एक है। जिस तरह नाव जो है नाई से पैसा नहीं लेता, धोबी से पैसा नहीं लेता, तो मैं नाविक हूं, मैं नाविक से पैसा कैसे लूं? आप तो सारे संसार को पार उतारते हो, सब जीवात्माओं को, और मैं गंगा पार उतारता हूं, दोनों की जात एक है, उतार ही नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चौ।
मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहूं। राम जी की दुहाई है और दशरथ का सौगंध कहता हूं कि मैं नहीं उतारूंगा। जब लगी न बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाय पकारी हो। बड़े ही लखन जी तीर मार ले, लेकिन जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न नाथ कृपाल नारु पाल उतारी हो। तो सुन के भट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे वीर से करुणा इंचित जान की लखन तना। बोले केवट के जो वाणी थी बहुत अटपटी वाणी थी। बोला कि मेरी नाव जो है आपने पत्थर को छुआ दो, अहिल्या बन गई, और अभी लकड़ी को छुएंगे तो क्या होगा? वो तो लकड़ी तो और भी इजी है पत्थर से। तो उठ पटांग बात कर रहा है। लेकिन प्रेम लपेटे, हम भगवान की जब स्तुति करते हैं और भले ही वो अटपटी हो लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो एक ये प्रेम होना चाहिए। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई कर जही तब नावन जाए। पद पखारी जन आए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। तो पार उतारा उसने, भगवान के पैर पखारे, चरण पखारे और जल को जो है पिया आप सहित परिवार। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितरी पार करी प्रभु पुनि मृत गए उलई पार। अपने पितरों को भी पार कर दिया, जो नरक इत्यादि लोग में शरण रहे थे वो भी पार हो गए, सारे परिवार के लोगों को मुक्त कर दिया। और फिर बाद में भगवान गंगा किनारे रहते हैं और कुछ देना चाहते हैं, लेकिन केवट कुछ नहीं ले रहा है। बोले नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी बली भूरी। मुझे क्या नहीं मिला? एक्चुअली लोग इतने मूर्ख हैं कि भगवान के बाद आकर कुछ मांगते हैं। भगवान के बाद ऐसा क्या है जो भगवान दे नहीं देते नहीं है? भगवान कभी भी आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। जो भी मंदिर में आता है भगवान अवश्य उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। बोले मुझे क्या नहीं मिला? जन्म जन्मांतर से जो है मैं चक्की पीस रहा था, अभी आपके दर्शन हो गए और आपकी भक्ति मिल गई, और क्या चाहिए? तो हम सभी जीवात्माएं जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं इस माया से, भगवान की माया से, लेकिन पार नहीं पा रहे हैं। तो हमें भी भगवान से बिना कुछ मांगे केवल भक्ति मांगना चाहिए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोलते रहना चाहिए। और भगवान के चरणाविंद का पान अवश्य करना चाहिए। अभी बाहर देखिए चरणामिंद रखा हुआ है। हम हमारे भक्त लोग प्रतिदिन भगवान को स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं और उसका चरणामृत जो है रहता है। वो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। जो चरणामृत का एक बूंद भी अगर आप पिएंगे तो आप जो है पुनर्जन्म आपका होगा भी नहीं। और यदि भगवान का अभिषेक करेंगे, कहते हैं यावंती जल बिंदुनी मम गात्रे निवेशित। आप एक लोटा में अगर 1000 बूंद है तो उतना 1000 गुना आप वैकुंठ लोक में रहते हैं। यह हरिभक्ति विलास में है। यावंती जल बिंदुनी मम गात्रे निवेशित तानि वस्तु सहस्राणि विष्णु लोके महीयते। विष्णु लोक में आपका स्वागत होता है। और आपने 10-12 लोटा डाल दिया, लाख बूंद के लाख टाइम्स 1000 माने अनंत काल के लिए आप वैकुंठ में रहेंगे। हरि हरि बोल। तो यावंती जल बिंदुनी मम गात्रे निवेशयेत तानि वस्तु सहस्राणि विष्णु लोके महीयते।
विष्णुलोक में जाते ही नहीं, आपका स्वागत होता है। देखिए, भगवान का अभिषेक करने का लाभ और भगवान के अभिषेक का जल पीने का लाभ। तो केवट ने दोनों किया, अभिषेक भी किया भगवान का और उनका चरणामृत भी पिया। पदोपकारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितरी पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयहु लई पार। तो सीता जी ने अपनी मुद्रिका निकाली, अंगूठी देना चाहा लेकिन देना। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के वटले, विदा कीन रघुनायक भगति विमल वर दे। भगवान ने उसको विमल भक्ति दे दिया, कहा कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, इसके पश्चात तुम मेरे साकेत धाम में आओगे। तो विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। तो भगवान राम जो है गंगा नदी से उतर करके पार करके और फिर प्रयाग में भरद्वाज मुनि से मिलते हैं। फिर वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, और भगवान जो है वाल्मीक जिसे मिलते हैं। ओके, कहाँ रहो? चित्रकूट में रहने का क्या? चित्रकूट जिमी बसे भगवान, चित्रकूट में वहां बसते हैं। तो भगवान वहां चित्रकूट में बसते हैं और वहां पर कही लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपर्णखा जिमि कीन कुरूपा। और वहां सुपर्णखा आई थी, वो राम लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी। तो भगवान राम लक्ष्मण ने मिलकर उसको कुरूप कर दिया, उसके कान और नाक काट दिए। देखिए, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। आप कह सकते हैं कि कुब्जा जो कुरूप थी उसको स्वरूप कर दिया, कुब्जा वैश्या उसको स्वरूप दे दिया, उसका कुब्ज जो है खत्म हो गया, सुंदर युवती बन गई, सुंदर युवती में परिणित हो गई। और जो सुपर्णखा थी वो स्वरूपवान थी, उसको कुरूप कर दिया। तो भक्ति, कुब्जा में भक्ति थी, वो जितना अनुलेपन था कंस के लिए वो सब भगवान को दे दिया, उपटन अनुलेपन। और यहाँ सुपर्णखा में भक्ति नहीं है, तो सुपर्णखा को कुरूप कर दिया और कुब्जा को स्वरूप कर दिया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपर्णखा जिमि कीन कुरूपा। उसके बाद खरदूषण को बुलाया। खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना। 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण आए और भगवान ने अकेले उनका संवध कर दिया एक क्षण में। जब ये समाचार रावण को मिला तो वो बहुत भयभीत हो गया। पहली बार खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। कि खरदूषण मेरे समान बलवान है, उसको बिना भगवान ने कोई मार नहीं सकता है। तो लगता है भगवान ने अवतार ले लिया है, लेकिन तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरा तामस शरीर है, भक्ति तो नहीं होगी, और मैं बैर करूंगा और उनसे युद्ध करके मारा जाऊंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा विचार करके दस्कंदर आता है और मारीच के पास आता है। तो खरदूषण पद बहुरी बखाना, सुनी सब मर्म दसानन जाना। देखिए, राम कथा क्या है? सुंदर करतारी है। आप जो ताली बजाते हो तो क्या होता है? पशु पक्षी क्या होते हैं? उड़ जाते हैं ना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियोग उड़ावनिहारी। जितने भी आपके संशय है, शोक है, संदेह है, मोह है, भ्रम है, सब भाग जाते हैं। जिस प्रकार के पक्षी उड़ जाते हैं तो संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। तो जितनी आप राम कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, उतना आपका मोह माया सब भाग जाएगा।
पुनि दस कंधर मारीच बद कही, जय विद भई सो सही विधि कही। दस कंधर ने मारी जो कहा कि सुंदर हिरण्य बन के जाओ, सोने का मृग, और सीता को प्रभावित करो कि भगवान राम मारने आए और मैं सीता का हरण कर सकूं। पूर्णिमाया सीता कर हरणा, श्री रघुवीर विरह कछु वर्णा। ये सब कथा काकभूषुंडी कह रहे हैं। किसको? करुण जी को। पूर्णिमाया सीता कर, जो है सीता जो है माया रूपी सीता थी, असली सीता नहीं थी। इसका रावण ने हरण किया, वो नकली सीता थी। उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं। एक बार प्रसंग था, एक बार लक्ष्मण जी रोज लेते थे कंदमूल फूल लेने गए, कंदमूल फल। तो भगवान राम ने सीता को बोला, लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन कंद लेन फूल मलकंद। जनक तुतासन बोले, रघुपति करुणा पुंज। कहे तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा। हे सीते, तुम अग्नि में निवास करो, जब तक मैं निशाचर का, राक्षस का नाश नहीं करता हूं, तुम जो है पावक में रहो, अग्नि में रहो, और अपना जो है नकली रूप लेकर के बाहर आ जाओ। तो रावण सोचता था कि मैंने सीता का हरण किया है। वो सीता क्या थी? असली सीता नहीं थी। तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो पूर्णिमाया सीता कर हरणा, श्री रघुवीर विरह कछु वर्णा। अब देखिए, राम लक्ष्मण वापस आते हैं मारीच का वध करके, और देखते हैं सीता आश्रम में नहीं है। हालांकि लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे लक्ष्मण जी, और रावण पार नहीं कर पा रहा था। तो छल से उसने कहा कि सीते तुम बाहर आओ, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कहीं किसी के गृह में जाता नहीं हूं। और जैसे ही बाहर आई हो, तो क्या क्या गीध ने, जो कि देखिए गीध राज थे जटायु, उन्होंने बहुत सहायता की। मैं रावण लेके जा रहा था दक्षिण दिशा में, तो गीध ने आक्रमण किया और चोंच से विदारण किया। एक दंड के लिए मूर्छा हुई रावण को। रावण ने अपना चंद्रहास तलवार निकाला और उनके पंख काट दिया। काट सी पंख पराख धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। तो पूर्णिमाया सीता कर हरणा, श्री रघुवीर विरह कछु वर्णा। भगवान जो है प्राकृत पुरुष की तरह हम आंखों से आंसू बह रहे हैं और कहते हैं, हे सबसे कहते हैं, हे खग मृग हे कोकिल बहनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हर से पूछते हैं, पेड़ से, लताओं से, पक्षियों से तुमने सीता को देखा है? इंद्रगनी सीता को देखा है? मेरी सीता कहाँ है? रो रहे हैं, रो रहे हैं। तो भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान सबके जीव में अंतर्यामी रूप से है, परमात्मा रूप से। तो क्या जानते नहीं कि रावण लेके आए? लेकिन वो प्राकृतिक मनुष्य की तरह रोग रोग करके लताओं से, कुंद से, पेड़ से, वृक्ष से, पक्षियों से, पशुओं से पूछ रहे हैं, ये है तुम देखी सीता मृग नयनी, मृगनयनी सीता को तुमने देखा है क्या? तो देखा गीधराज जो है मरण की मृत्यु होने वाली है। भगवान ने गीत को अपने गोद में रखा, जटायु को, और उनका यशोद से संस्कार किया।
प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी। देखिए, गीत अधम खग आमिष भोगी, गद दीनी जो जाचत जोगी। घी जो है वो मांसाहारी जीव है, और किसका मांस खाता है? मुर्दे का मांस। गीध कौन सा मांस खाता है? मरे हुए प्राणियों का। आप जानते हैं पारसी लोग जो क्या करते हैं, जलाते नहीं है, घाटते भी नहीं है बॉडी को, वो फेंक देते हैं गुफाओं में, और वहां पर आके गीध लोग उनको खा लेते हैं। तो गीध अदम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। ये अधम जी है गीध, जो कि मांस खाता है, वो भी मुर्दे का मांस। उसको भगवान ने ऐसी गति दी कि सारूप्य मुक्त दे दिया। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात भुषाल भुज चारी, अस्तुति करत नैन भयवारी। जैसे ही भगवान राम ने गीध का संस्कार किया, अंत्येष्टि संस्कार किया, और गीध ने वो देह छोड़ करके पूरा चतुर्भुज रूप में आ गए, पूरा भूषण पीठ वगैरह शंख चक्र गदा पद्म, और स्तुति कर रहे हैं। देखिए, तो भगवान से भक्ति करने से क्या लाभ है, आप समझिए। तो शिव जी कहते हैं उमा को, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होई विषय अनुरागी। इतने दयालु हैं भगवान राम, इतने दयालु हैं, उतने हरि को, राम को, कृष्ण को छोड़कर लोग विषय के भक्त हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्त करने के पीछे भागते हैं। तो सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होई विषय अनुरागी। तो आगे कथा कहता है कागभूषुंडी, सुनिए। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बधिक बंद सबरी गति दीनी। कमंद राक्षस था और उसका वध किया और शबरी को गति दिया। हजारों हजारों वर्ष से शबरी जो है अपने आश्रम में प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मार्तंड मुनि ने कहा कि राम अवश्य आएंगे, और राम आ नहीं रहे हैं। रोज आके आत्म की सफाई कर रहे थे, और मीठे मीठे बैर चुन के लाती थी, और चखती थी कि कौन मीठा है और कौन खट्टा। खट्टे को फेंक देती थी, मीठे को रखती थी। बताइए, ये प्रतीक्षा है, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे ही आएंगे। तो हमें भी हतोत्साहित नहीं होना है। भक्ति करते करते कभी हम निराश हो जाते हैं, अरे भगवान तो कोई आ ही नहीं रहे हैं, हमें भगवान का रियलाइजेशन अनुभव नहीं हो रहा है। हम इतने सालों से हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम, लेकिन भगवान तो आते ही नहीं हैं। तो शबरी अपने को हतोत्साहित नहीं होना है, आप भगवान आएंगे ही और भगवान रक्षा करेंगे ही। शबरी का एग्जाम्पल है। तो हमें भी भक्ति करते रहना है और भगवान अवश्य आएंगे। मैं सर्वाणि कर्माणि बोलते हैं ना कि मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हें पार उतार के ले जाऊंगा। तो भगवान आगे चलते हैं फिर। भगवान ने गिर का उद्धार किया और फिर गए, पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा। पंपा नाम एक सरोवर है, पंपा सरोवर में गए किष्किंधा के पास में, वहां पर। और वहां पर
वहां भगवान राम कही प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग। नारद जी वहां पर आए, भगवान की स्तुति किए। इसके बाद हनुमान जी मिलते हैं भगवान राम को। हनुमान सम नहीं बड़ भागी राम पदारविंद अनुरागी। आज तक जो है पूरे इतिहास में, भक्तों के इतिहास में, हनुमान से बड़ा कोई सेवक भगवान का हुआ नहीं है। क्योंकि हनुमान अतिशय बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी राम पदारविंद अनुरागी। कहते राम काज की नहीं बने मोही कहाँ विश्राम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं भागवत में टीका में कि हनुमान से बड़ा कोई सेवक और भक्त नहीं है। यहाँ तक कि ध्रुव महाराज की भक्ति से बढ़कर है हनुमान की भक्ति। तो फिर क्या हुआ? पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। हनुमान जी ने सुग्रीव को और भगवान राम को की मृत्यु की, और उसके बाद बाली का वध हुआ। बाली के डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता था कि वहां श्राप था कि वो बाली वहां जाएगा तो मारा जाएगा। क्योंकि बाली ने पूरा सुग्रीव को अर्थात उसकी नारी हर ली, सब कुछ संपत्ति हर लिया, उसको फेंक दिया उठा के। तो भगवान ने पेड़ के नीचे छुप करके एक बाण से ही बाली का वध कर दिया। अब यहां कहेंगे आप कुछ बात कर रहे हैं भगवान राम कि सुग्रीव को मित्र बना दिया और बाली को शत्रु बना दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो बाली कहते हैं मरते समय कि भाई भगवान आप तो सबके बराबर दया रखते हो, लेकिन सुग्रीव पर आप को मित्र बना लिया, मुझे शत्रु बना दिया, क्यों? देखिए समो हम सर्वभूतेषु न मे दुष्टि न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैं तेषु शापयाम। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो भगवान को भक्ति से भजते हैं। सुग्रीव में भक्ति थी भगवान के प्रति, और राम के प्रति बाली के प्रति बाली को राम के प्रति भक्ति नहीं थी। तारा ने कहा भी कि ये भगवान है, मत जाओ सुग्रीव लड़ने और उनसे मित्रता कर दो, लेकिन बाली नहीं माना। तो भगवान ने कहा अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुनि सट कन्या समय चारी इन्हीं कुरिष्ट विलोक जोई ताई बदे जो पाप न होगी। अनुज वधु जो सुग्रीव की पत्नी जो है तुम्हारे छोटे भाई की बहू है, वधु है, पत्नी है। तो ये जो चार है ना, कन्या हुआ, अनुजवरी हुआ, बहन हुआ, इन चारों को कोई कुदृष्ट देखता है तो ताही बधे को जो पाप न होई। मैंने तुम्हारा वध किया क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्ट डालकर उसे अपने पास रख लिया। तो अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी हो, अपनी बहन हो, कन्या हो, और पुत्र की नारी पुत्र वधु हो, इन पर कभी भी कुदृष्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। तो पुनि सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग। तो कभी ही तिलक, कभी में भी बाद में क्या हुआ, भगवान ने किष्किंधा का राज दे दिया सुग्रीव को, और 4 महीने के लिए वर्षा ऋतु में प्रवर्षण पहाड़ पर वास किया। कपि तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रवर्षण वास वर्णन वर्षा शरद रू राम रोष कपित्रास। तो 4 महीने में तो सुग्रीव भूल गया। पावा राजकोष पुर नारी सुग्रीव वहीं सुधी मोहरी विसारी पावा राजकोष पुर नारी। उसको राज्य मिल गया, कोष मिल गया, पुर मिल गया, और नारी भी मिल गई। 2 नारी मिल गई। बाली की पत्नी तारा भी मिल गई और उसकी खुद ही पत्नी मिल गई। पागल हो गया और विषय भोग में इतना रत हो गया कि भगवान का कार्य भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे पास जितनी भी संपत्ति आए, लेकिन भगवान को भूलना नहीं है।
भगवान को हमेशा याद करते रहना है। अभी समय कुछ है बचा कि नहीं है? 5-10 मिनट और ले सकता हूं? हाँ, क्या कहें? 9 बज गए हैं क्या? हाँ? 5 मिनट और लूंगा, क्योंकि प्रसंग इतना अच्छा है कि समाप्त करके तो उसके पश्चात सभी बानरों के साथ में भगवान आए लंका के किनारे, अरे समुद्र के किनारे, वहां पर सेतु को बांध किया। सेतु बंद किया और सारी जो है सेना समुद्र के इस पार आ गई। उसको सेतु बांध के उस पार चले गए। अभी रावण को खबर देने अंगद वहां पर गए, लेकिन उसकी बात सुना नहीं। और निशिचर की लड़ाई बरनिश विद्र प्रकार, कुंभकर्ण घरनाथ गर्बल पौरु संहार। कुंभकर्ण का वध हुआ, मेघनाथ का वध हुआ लक्ष्मण के द्वारा। भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया और निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बकाना। राम रावण का युद्ध हुआ और फिर रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव शोका। रावण का वध हुआ, मंदोदरी को शोक हुआ, विभीषण को राज्य मिला लंका का और देवताओं को सुख मिला। इसके बाद सीता रघुपति मिलन बहोरी। सीता जी को अग्नि परीक्षा ली गई और असली सीता अग्नि से आ गई और सुर ने की न स्तुति कर जोरी और देवता लोग हाथ जोड़ करके स्तुति किए। इसके बाद पुष्प विमान में बैठ करके भगवान राम अपने घर आए, उनका राज्याभिषेक हुआ। तो ये सब कथा जो है, जैसे ही कथा सुना गरुड़ का मोह खत्म हो गया। कहता है गयो मोर संदेह सुनत सकल रघुपति चरित, गयो मोर संदेह भयहु राम पद ने, तव प्रसाद मायस तिलक। तो जितनी हम राम कथा सुनेंगे उतना हमारा संदेश चला जाएगा, संशय, और भगवान राम के पद में नहीं होया, भयो राम पद में। तो भगवान राम के चरणों में स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो हमारा जन्म सार्थक होता है। बोलिए रामनवमी महा महोत्सव की, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।